I have been given this opportunity to speak on a subject of English literature. Sir asked me that you have to select a topic which should be understandable even to those students who do not belong to English literature. But I was confused a bit that whether I should start with language or with literature. So sir asked that select the topic from literature, because if I will teach you about English as a second language and speak about the importance of English language, that would have been a little bit boring for you, isn't it? So I decided that why should I not start with the most beautiful period of English literature, and that also the golden age of English poetry. अभी बात हो रही थी कि अंग्रेजी में कौन कौन सी विधाएं हैं, हिंदी में जिनको हम विधाएं कहते हैं, in English we call them genres. So you were very much confused, even the two students of English literature. One of them was not ready to take the subject English literature. She was quite confused. And on the last day she decided that I will take English literature as a major subject. And she is the best student of the class. This is the irony of the situation, that the students are so much confused that which subject they should opt for. But okay, this year I have 8 students. For the last 6 years, this is the maximum number of students in English in this college. So it is a very good news for me as well as the college that the number of students are increasing in this subject slowly and slowly, because the students of the rural belt are having some fear about English without any reason. There is no reason to have any fear of a subject. Okay, all subjects are equal. So why should we not select a subject in which we are interested? We should set away all the fears while choosing subject, that this subject is simple and that is a little bit complex and difficult. So coming back to my topic, the golden age of English poetry. First of all, confusion khatam ho jana chahiye that which age is the golden age of English poetry. I am not going to tell you about the genres in detail because the topic will be very long. In fact, the age, teaching a particular era or age, and that also in 1 hour or in few minutes is very difficult. बहुत कठिन है कि हम किसी काल को आपको 1 घंटे में समझा दें, लेकिन हम कोशिश करेंगे आज, ठीक है? तो अंग्रेजी साहित्य में जो मुख्य काल हैं वो ओल्ड एज से शुरू होते हैं. अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इतिहास को, so we have the Anglo-Saxon period, we have the Middle English, and after that we have the biggest age of English literature known as the Renaissance, जिसको हम कहते हैं पुनर्जागरण काल, जो 1500 ईस्वी से शुरू होकर के 1660 तक चलती है. And after 1660 we have Restoration age, and after the Restoration age we have Neoclassical age, and the age which I am going to take up today is the Romantic age of English literature, which is the golden age of English poetry. And after that we will move to Victorian age and modern age and postmodern age. तो इस तरीके से इसका पूरा क्रोनोलॉजी है, इसका पूरा कालक्रम है अंग्रेजी साहित्य का. तो ऐसा क्या हुआ इस एज में दैट इस एज की पोइट्री इतनी अच्छी हो गई कि इसको सब लोगों ने गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा. क्या शेक्सपियर जो रेनेसां एज में लिखते थे, क्या उनकी पोइट्री किसी मामले में कमज़ोर थी क्या, या वो किसी से पीछे थे क्या? बट एज यू नो दैट शेक्सपियर वॉज बेसिकली ए ड्रामेटिस्ट, नॉट अ पोइट. ही हैज़ रिटन 36 ड्रामाज. In fact, his output in the field of drama was so big that his poetic output was eclipsed. वो छिप गई, it was hidden. He has written 158 sonnets also. 158 sonnet उन्होंने लिखे. He has written some other poems like Rape of Lucrece, Venus and Adonis. इस तरीके से बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी, लेकिन उनको हम बेसिकली एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जानते हैं, एक पोएट के रूप में नहीं जानते हैं. बट द पोएट्री विच ही हैज़ रिटन इन हिज ड्रामाज
is unparalleled in English literature. And that is why he is compared with Kalidas in Sanskrit. Or often we compare Kalidas to him or Shakespeare to Kalidas. ठीक है ना? So if you have read any of the poetry of his greatest tragedies like Hamlet, Macbeth, King Lear, Othello, so you would have got a glimpse of his poetry कि कैसी कविताएं वो लिखते थे. अब बात हुई ये कि जब एक एज बहुत लंबे समय तक चलती है और उसमें किसी एक खास किस्म का लिटरेचर लिखा जाता है तो लोग थोड़ा उस लिटरेचर से बोर हो जाते हैं और युग परिवर्तन हो जाता है. युग परिवर्तन कोई ऐसी चीज़ नहीं है दैट ऑल ऑफ अ सडन टुडे वी आर इन अ रेनेसां एंड टुमारो वी विल मूव टू द रेस्टोरेशन पीरियड. इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ये बहुत धीरे धीरे होती है. ठीक है ना? कई साल लगते हैं इसको बदलने में. ठीक है, फिर कुछ ऐसा पोएटिक या लिटरेरी आउटपुट आ जाता है या ड्रामेटिक आउटपुट आ जाता है, फिर हम मान लेते हैं यस दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस एज. सो क्यों ये रोमांटिक एज शुरू हुई, थोड़ा इसको बता देते हैं. बिफोर रोमांटिक एज वी हैव न्यू क्लासिकल एज. न्यू क्लासिकल, एक दिन हम बता रहे थे क्लास में आप लोगों को व्हाट इज न्यू क्लासिसिज्म. ये क्लासिक वर्ड कहाँ से आया? दिस क्लासिक वर्ड हैज कम फ्रॉम ग्रीक लिटरेचर from the days of Aristotle, Plato and Socrates. We have great dramatists in Greek literature like Sophocles, Aeschylus, Euripides. They were the three great dramatists of Greek literature. और जब अरस्तु ने अपनी पोएटिक्स लिखी तो उन्होंने कहा कि ये जो पोएटिक्स में हम बात कर रहे हैं ये किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? I am talking on the basis of the great tragedies and comedies written by the three trios of Greek literature. That is Aeschylus, Euripides and Sophocles. और अरस्तु ने वो महान ग्रंथ लिख दिया पोएटिक्स, जिसका आज भी कोई पैरेलल नहीं है. आज भी जब हम लिटरेचर के नियमों की बात करते हैं तो हमें पोएटिक्स ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है. बहुत सारे क्रिटिक्स आए, लिटरेरी क्रिटिक्स आए, बहुत सारे ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे गए, बट पोएटिक्स इज पोएटिक्स इवन टुडे. वी हैव टू लुक बैकवर्ड टू अरिस्टोटल टू रेफर टू द रोल ऑफ लिटरेचर एज फार एज क्लासिसिज्म इज कंसर्न. तो जब न्यू क्लासिकल एज आई तो इस एज का दूसरा नाम था एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप या एज ऑफ पोप. और पोप इस एज के सबसे बड़े पोएट थे. फिजिकली वो डिफॉर्म्ड थे, चारपाई पे पड़े रहते थे, चल भी नहीं सकते थे. ठीक है, बट मेंटली देयर वाज नो पैरेलल टू अलेक्जेंडर पोप इन द न्यू क्लासिकल एज. एंड ही हैज रिटन द काइंड ऑफ सटायर्स इन इंग्लिश लिटरेचर which are unparalleled even today, be it Horatian satire और Juvenalian satire, जो दो विधाएं व्यंग्य की अंग्रेजी साहित्य में हैं, जिसमें एक होरेस के नाम पे चलती है, एक जुवेनल के नाम पे चलती है. तो पोप बहुत बड़े सटायरिस्ट थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? पोप कहते थे कि लिटरेचर नियमबद्ध होना चाहिए. ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड रूल्स. और उनके जो कंटेम्परेरीज बाकी पोएट थे, चाहे ड्राइडन रहे हों या और भी लोग रहे हों, तो ज़्यादातर सटायर को अपना माध्यम उन्होंने बना लिया. ठीक है ना? और हीरोइक कपलेट में पोइट्री लिखी गई बहुत सारी न्यू क्लासिकल एज में. हीरोइक कपलेट बिल्कुल वही है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दोहा, 2 लाइन का स्टेंजा, हीरोइक कपलेट. वो अपने पूरी पोइट्री अपनी हीरोइक कपलेट में लिखी. इवन हिज एसेज इन क्रिटिसिज्म, जिसका टाइटल एसे है, दैट वाज रिटन इन वर्स फॉर्म and the whole of essay in criticism was written in poetry. तो लोग बहुत बोर हो गए कि ये बहुत नियम हो गया, बहुत प्लेटो अरिस्टोटल की बात हमने कर ली. लिटरेचर को फ्रीडम में लाना है, लिटरेचर को नियमों में नहीं बांधना है. लिटरेचर की जब हम बात करें सो वी शुड हैव कंप्लीट फ्रीडम. तो पोप की एज को कहा गया द एज ऑफ रीजन, द एज ऑफ इंटेलेक्ट. कि पोप की एज जो है उसमें तर्क का बहुत बड़ा रोल था. द एज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड पीपल वेर फेड अप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो टू पीपल, द टू ग्रेट नेम्स ऑफ रोमांटिक एज. अभी थोड़ा अगर बोरिंग लगेगा तो जब हम पोएम्स को थोड़ा पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला.
क्योंकि कविता पे जो लेक्चर है वो सिर्फ बिना कविता को पढ़े मज़ा नहीं आता। तो दो लोग जिनका नाम सब लोग जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, दे वर ग्रेट फ्रेंड्स। In fact, William Wordsworth was born in 1770. 1770 में वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है और 1772 में जस्ट 2 साल बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म होता है। शुरुआत में तो इन दोनों का कोई खास परिचय नहीं था, बिकॉज दे वर एजुकेटेड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। द 2 universities very well known to all of us, Oxford and Cambridge, and most of the romantics have got their education either from Oxford or from Cambridge. तो वर्ड्सवर्थ की जब हम बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में एक चीज़ आती है, दैट द बेस्ट नेचर पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर, हु इज ही इज विलियम वर्ड्सवर्थ, नो डाउट। लेकिन कॉलरिज का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो जब हम रोमांटिसिज्म की हिस्ट्री में जाते हैं तो कब ये रोमांटिसिज्म शुरू हुआ इसको समझ लीजिए। द ईयर 1798 इज द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, दैट इज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। 1798 क्या हुआ इस साल में ऐसा कि इसको बिगिनिंग मान लिया गया? द 2 great writers have written a collection of poems known as lyrical ballads. याद रखिएगा इस चीज को, lyrical ballads. It has 23 poems. इसमें 23 कविताएं थी। 4 कविताएं लिखी थी सैमुअल टेलर कॉलरिज और 19 poems they were written by William Wordsworth, because the literary output of Wordsworth was very big. Most of the time he was writing and writing. He has no other work. लोग तो कहते हैं that he was financially free and that's why he has a lot of time to write poetry. बिकॉज जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो फिर हमें फिर कुछ करना तो है नहीं, कि घर चलाना है तो पैसा कहाँ से आएगा। ये अभी भी क्लियर नहीं है कि पैसा वर्ड्सवर्थ को इतना कहाँ से मिल गया था कि वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। लोग तो कहते हैं वन ऑफ हिज फ्रेंड इन हिज लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ हैज गिवन हिम अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम फाइनेंशियली फ्री एंड ही स्पेंट हिज होल लाइफ इन वॉकिंग ओनली, ठीक है, इन वॉकिंग एंड रोमिंग इन लेक्स, इन माउंटेन्स, बाय द साइड ऑफ द रिवर्स, ऑन द कोस्ट ऑफ द सी, विद हिज फ्रेंड्स एंड विद हिज सिस्टर डोरोथी रिचर्डसन। जहाँ भी वर्ड्सवर्थ जाते थे उनकी बहन उनके साथ रहती थी, बहन का नाम था डोरोथी। इत्तेफाक से कॉलरिज की मुलाकात जब हो जाती है तो इन दोनों लोगों की नेचर में बिल्कुल अपोजिट मामला है। आप ये मत सोचिएगा कि साझे में इन्होंने कविताएं लिख दी और बिगिनिंग हो गई रोमांटिक एज की, कि दोनों की थिंकिंग एक जैसी है। नो, दे वर पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बट समटाइम्स कंट्रेरीज अट्रैक्ट टू ईच अदर। विरोधाभास जब होता है तो अट्रैक्शन और ज़्यादा होता है, मित्रता और ज़्यादा होती है। तो दोनों लोगों की मित्रता अच्छी जम गई। कॉलरिज के पास भी ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं था, तो दोनों लोग क्या किए, लेक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में, वहाँ पे सारा काम छोड़ के ये लोग घूमते थे, टहलते थे और कविताएं लिखते थे। अच्छा, कॉलरिज आए कहाँ कहाँ से ये रोमांटिसिज्म का आइडिया ले आए? सो रोमांटिसिज्म स्टार्टेड इन जर्मनी and for a certain work Coleridge stayed in Germany for some time, and when he came back, so he was very much influenced by the Schlegel brothers in Germany, जहाँ से रोमांटिसिज्म का उदय हुआ और उस चीज़ को यहाँ ले करके आए। और पड़ोसी देश फ्रांस में 1789 में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल था रोमांटिसिज्म को लाने में, क्योंकि उसका स्लोगन ही था फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अभी तक हम किस चीज़ पे चलते थे? राजशाही पे चलते थे, डिक्टेटरशिप पे चलते थे। लेकिन अब समाज में थोड़ा चेंज आया और लोग जो है अधिकारों के लिए थोड़ा सजग हो गए, तो हमारे लिए एक क्रांति आ गई जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वर्ड्सवर्थ उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे शुरुआत में। वो जानते नहीं थे कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन शायद गलत दिशा में चली जाएगी आगे चल करके,
तो शुरू में बहुत बड़े उसके वो एडवोकेट्स थे, इवन फ्रांस में रहे भी, ठीक है, और इसके बाद इस कदर उससे डिसइल्यूजन्ड हो गए कि इतनी नफरत हो गई इनको उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से कि फ्रांस छोड़ करके भाग आए और अकेले भाग आए। वहाँ जब रह रहे थे तो इनकी प्रेमिका थी एने वेल्टन, ठीक है, एक छोटी बच्ची भी थी इनकी, लेकिन जब भागे तो अपने परिवार को छोड़ के भाग आए। बाद में आकर के यहाँ दूसरी शादी कर लेते हैं मैरी हचिंसन के साथ में, ठीक है, दोबारा कभी फ्रांस नहीं गए, इतना ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड हो गए। तो इन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, अब हम सीधे आ जाएंगे कि रोमांटिक एज की पोइट्री का बेस क्या है। वर्ड्सवर्थ जब पोइट्री को डिफाइन करते हैं, अभी सर आपसे कह रहे थे पोइट्री होती क्या है, तो ज़रा एक डेफिनेशन हम बताएंगे जो कि इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री की सबसे बेस्ट डेफिनेशन अब तक की मानी गई। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, ये जबरदस्ती से पोइट्री वोइट्री नहीं आती है, ठीक है ना। प्लेटो ने कहा था पोइट्स आर डिवाइनली इंस्पायर्ड पीपल, ठीक है। पोइट्री कैन नॉट बी रिटन बाय प्रैक्टिस, कि आज हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे और हम बहुत बड़े अलेक्जेंडर पोप हो जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। देयर शुड बी सम डिवाइन स्पार्क इनसाइड यू, ओनली देन यू कैन बी अ ग्रेट पोएट। बाय प्रैक्टिस यू कैन बी अ ड्रामेटिस्ट, अ प्रोज राइटर, a novelist, a short story writer, but as far as poet is concerned, it is not possible to become a poet just by practicing if you don't have that divine spark inside you. तो इस एज के जो पोइट्स थे उनके अंदर ये चीज़ थी, एक एक करके अभी हम बताएंगे और उनके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोइट्री में इमोशन होना चाहिए और उसका जो ओवरफ्लो है वो हल्की फुल्की इमोशन नहीं, ओवरफ्लोइंग इमोशन होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर से गिर रही हो, ठीक है ना, दोनों किनारों से जैसे नदी बह रही हो बाढ़ के समय, वैसी इमोशन होनी चाहिए, ठीक है। तो और वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, उसमें कुछ आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इमोशन होने से क्या आप पोइट हो जाएंगे? उसके लिए ट्रैंक्विलिटी की भी ज़रूरत है। व्हाट इज़ ट्रैंक्विलिटी? ट्रैंक्विलिटी का मतलब है कि हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, जो तरंगें होती हैं, उनको बाहर प्रस्फुटित होने के लिए एक ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर की भी ज़रूरत होती है, परम शांति की स्टेज जिसको हम कहते हैं, ट्रैंक्विलिटी। इन डिस्टर्ब डेज, कोई भी एज जो बहुत डिस्टर्ब रही है उसमें अच्छी कविता नहीं लिखी गई। आप भक्ति काल को ले लीजिए, हिंदी में अकबर का पीरियड था, तभी तो तुलसीदास जैसे कवि हुए। क्या औरंगजेब के पीरियड में रहे होंगे? मैं नहीं जानता इतना हिंदी साहित्य के बारे में, लेकिन ये कहा गया है कि जब शांति होती है तो अच्छा साहित्य लिखा जाता है। तो वर्ड्सवर्थ ने जो डेफिनेशन दी वो रोमांटिक एज में पोइट्री के बारे में सब कुछ बयां करती है। बाद में वाल्टर पेटर ने दिया पोइट्री मीन्स एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, कि पोइट्री में ब्यूटी होनी चाहिए। तो टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोमांटिक पोइट्री। व्हाट आर दे? इमोशन एंड इमेजिनेशन। और इसके पहले की एज में क्या था? रीजन एंड इंटेलेक्ट। कविता में दो चीजें, रीजन और इंटेलेक्ट थी, इमोशन इमेजिनेशन था नहीं। द पोएट्री वॉज बोरिंग। And when in romantic age the two words have become the bedrock of romanticism, that is emotion and imagination. बाद में इसको और डिफाइन किया गया। कॉलरिज ने एक बड़ा बढ़िया ग्रंथ लिखा जो बहुत पॉपुलर हुआ और हर यूनिवर्सिटी में एमए में सिलेबस में रखा गया। उसको इत्तेफाक से यहाँ एमए नहीं है, आगे चल के अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो उस ग्रंथ को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज कहते हैं कि देयर आर टू थिंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स, वन इज फैंसी, द अदर इज इमेजिनेशन। सो फैंसी इज एन एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। हर व्यक्ति में वो है। फैंसी करना तो सब, आप कुछ भी कल्पना करते रहते हैं, फैंसी करते रहते हैं। बट इमेजिनेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पोइट्री।
and he divided imagination into two types. He said that there is a primary imagination and the other one is the secondary imagination. So he said that primary imagination can also be found commonly in most of the human beings, but secondary imagination is something which is special and it is only in writers and artists and poets. जो कलाकार हैं उनके अंदर सेकेंडरी इमेजिनेशन है, सबके अंदर नहीं है. सो ये जो डेफिनेशन है इमेजिनेशन का, या जो बाइफर्केशन इमेजिनेशन का है एंड द डिवीजन ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन, दैट इज गिवन इन डिटेल. अब उसकी बहुत गहराई में नहीं जाएंगे वरना उसी को डिस्कस हम करते रहेंगे. ठीक है, तो इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये बता दिया कालरिज ने अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में. लेकिन जहाँ तक वर्ड्सवर्थ और कालरिज की विचारधारा की बात है, हम बता रहे हैं ना दोनों विरोधी थे. सो वर्ड्सवर्थ सेड एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है. 1798 में रोमांटिसिज्म शुरू हुआ, लिरिकल बैलेट पब्लिश हो गया. इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट था, बिना नाम के इसको छापा गया. डर ये था कहीं बहुत विरोध ना हो जाए, क्योंकि पोप के बहुत बड़े भक्त थे लोग तब उस समय, और पोप के अपोजिशन में जाकर के एक नई प्रकार की कविता लिख देना, वो भी नाम के साथ, थोड़ा चैलेंजिंग था. तो दोनों ने कहा कि बिना नाम के एनोनिमसली इसको पब्लिश कर देते हैं. जब वो पब्लिश हो गया उसको बहुत बड़ा वेलकम मिला, और जब बहुत बड़ा वेलकम मिला तो 2 साल के बाद वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि अब बता देते हैं कि एक्चुअली क्या लिखा गया और क्यों लिखा गया. So he has written a preface to lyrical ballads. Preface was written 2 years later. It should have been written earlier. ठीक है ना, जनरली हम प्राककथन पहले लिखते हैं, बाद में वो काव्य या रचना लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्राककथन बाद में आया. And the preface is not a common article. It has become an important piece of literary criticism, जिसमें वर्ड्सवर्थ की पूरी फिलॉसफी ऑफ पोइट्री है. प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि अभी तक पोइट्री जो लिखी गई बड़ी कठिन थी, बड़ी जटिल थी, बड़ी क्लस्ट थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स थी. पोइट्री शुड बी रिटन इन कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल. इसको सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए. इवन एन अनएजुकेटेड इंग्लिश बॉय शुड अंडरस्टैंड व्हाट द पोइट हैज रिटन. कवि ने क्या लिखा है एक अनपढ़ अंग्रेज भी पढ़ ले. जैसे हमारे यहाँ कोई कविता हिंदी साहित्य की है तो सिर्फ वही ना समझ पाए जो हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ है, अनपढ़ भी हिंदी तो बोलता है, सुनता है, तो कबीर के दोहे उसकी भी तो समझ में आ जाते हैं ना. उसके लिए कोई डिग्री लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है. सो वर्ड्सवर्थ सेड दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन. कालरिज नाराज हो गए. कालरिज बोले कि पोइट्री इज अ मैटर ऑफ एस्थेटिसिज्म. इट शुड हैव रिदम, इट शुड हैव इमेजरी, इट शुड हैव अ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर स्पेशल एंड हाई फाई. ठीक है ना, लोग कहते हैं ना प्रोज और पोइट्री में क्या डिफरेंस है, तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन लोग दे देते हैं कि प्रोज में ग्रामर बहुत देखा जाता है, ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट. ठीक है ना, बट इन पोइट्री ग्रामर इज लेस इंपॉर्टेंट. What is more important? Selection of words is more important. Poetic diction is more important. Rhyme and rhythm is more important. Imagery is important. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज कहते हैं कि पोइट्री में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अनपढ़ आदमी की भाषा में कविता लिखी जानी चाहिए. ठीक है ना. आप लोगों ने कक्षा 9, 10, 11, 12 में वर्ड्सवर्थ को जरूर पढ़ा होगा. कुछ नहीं पढ़ा होगा तो लूसी पोइम्स को पढ़ा होगा. यह एक बड़ी फेमस कविता है सॉलिटरी रीपर. ठीक है ना, उसकी पहली लाइन है बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड या सॉलिटरी हाई लैंड लास. ठीक है, पूरी कविता में लेकर के आया हूँ बिकॉज पूरी कविता याद रखना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं थोड़ा बस रोमांटिसिज्म की एज की कुछ कविताओं से आपको परिचय कराना चाहता था. तो आज मैंने 2-4 कविताएं निकाली इंटरनेट से प्रिंट आउट. देखिए कितनी सिंपल भाषा है, कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ को समझने के लिए. कहते हैं बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड या सॉलिटरी हाई लैंड लास, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ स्टॉप हियर आर जेंटली पास. एक लड़की है, वो गुजर रहे हैं पहाड़ी इलाके से,
और वो फसल काट रही है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं देखो उसको, behold her, she is single in the field, solitary highland lass, highland मतलब माउंटेन में रहने वाली, highland पहाड़ी लड़की है, reaping and singing by herself, फसल काट रही है और गीत गा रही है। कहते हैं stop here or gently pass, या तो चुपचाप से गुजर जाओ और या सुनना चाहते हो तो जरा शांति से सुनो, डिस्टर्ब मत करो उसके गाने को, उसे गाने दो। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain, अकेले वो फसल काट रही है और कोई दुख भरा गीत गा रही है। फिर वो कहते हैं ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद हर साउंड, वो कहते हैं देखिए पूरी गहरी घाटी उसकी आवाज से गुंजायमान है, ठीक है। और फिर उसकी आवाज की तुलना करते हैं किससे? नाइटिंगेल से, बिकॉज देयर आर ओनली टू बर्ड्स इन लिटरेचर known for their melodious voice, that is cuckoo and nightingale. And after later skylark को भी सेली ने कहा कि तुम भी बहुत अच्छा गाते हो, हालांकि स्काईलार्क को तो हम लोगों ने बहुत अच्छा गाते हुए नहीं सुना, अभी उस पर भी आएंगे, ठीक है। कहते हैं नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands, कभी किसी बुलबुल ने भी इतना अच्छा गाना थके हुए यात्रियों को नहीं सुनाया होगा। जो यात्री थक जाते हैं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो कभी किसी बुलबुल ने पेड़ पे बैठ के इतना मधुर गाना नहीं गाया होगा। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। तो इस तरीके की इंग्लिश को वो प्रेफर करते थे। आप लूसी पॉइंट्स को पढ़ोगे, दिस लैंग्वेज इज इवन सिंपलर देन दिस, बट इफ यू स्टडी कीट्स एंड शेली you have to be well versed in English literature, otherwise you will not understand. तो वर्ड्सवर्थ किसको एडवोकेट करते थे? सिंप्लिसिटी को एडवोकेट करते थे। बाद में एक और कविता है बड़ी मशहूर जो कॉलरिज की है, हमने बताया ना 4 कविताएं किसने लिखी थी? कॉलरिज ने, आउट ऑफ 23 इन लिरिकल बैलेट्स एंड 19 वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो उन 4 कविताओं में एक बहुत मशहूर कविता है, उसको तो इनफैक्ट टॉप 10 पोएम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में गिना जाता है। द लिटरेरी आउटपुट ऑफ कॉलरिज वॉज वेरी मेग्र, वेरी शॉर्ट। लेकिन एक बहुत बड़े क्रिटिक ने कहा कि कॉलरिज की उपलब्धि को जब आंका जाएगा तो 20 पेज में बांध दिया जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना, बाइंडिंग गोल्ड से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कॉलरिज की आउटपुट थी। तो कॉलरिज ने कौन सी कविता लिखी? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है, मैं सुनाना चाहूँगा थोड़ा। ये कहानी है एक बूढ़े मैरिनर की। मैरिनर जानते हैं? सी सेलर, समुद्री यात्री जो होता है। तो समुद्री यात्री का काम ही है समुद्र में रहना, शिप में, ठीक है, यात्रा करना। तो समुद्री सेलर की भेंट होती है वेडिंग गेस्ट से। वेडिंग गेस्ट कौन हुआ? शादी का मेहमान, ठीक है। ऐसा मेहमान जो शादी में जा रहा हो, उसको वो ओल्ड मैरिनर रोकता है और कहता है रुको, मैं तुमको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो कहता है अरे देख रहे हो शादी में हम जा रहे हैं और गाजे बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही है और मुझे तो लग रहा है दावत भी शुरू हो गई है और तुम हमें यहाँ रोक रहे हो, अपनी कहानी सुना रहे हो। तो कह रहा नहीं नहीं सुन लो मेरी कहानी, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। और उसकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण या ऐसी रिक्वेस्ट होती है कि वो बांध लेता है किसको? उस वेडिंग गेस्ट को, और अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कहता है कि हम 200 लोग थे, 200 क्रू मेंबर्स, जहाज में जा रहे थे, ठीक है, और हमारा जहाज चलते चलते इक्वेटर तक पहुंच गया। अब देखिए इमेजिनेशन में तो कभी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। एक ही कविता में इक्वेटर से साउथ पोल और नॉर्थ पोल हर जगह शिप को जाते हुए दिखाया गया, ठीक है। और जब इक्वेटर पे हम लोग पहुंच गए तो तूफान आ गया, समुद्र में तूफान आ जाता है, वेरी कॉमन। सो हमारा जो शिप है वो कहाँ चला गया? सदर्न पोल पे चला गया। एंड इन द सदर्न पोल देयर वाज आइस एंड आइस एंड वी वर स्टक इन आइस। हम लोग फंस गए बर्फ में। अब बर्फ में फंस गए तो अब हमारा जहाज न इधर जा रहा था ना उधर जा रहा था। कॉलरिज लिखते हैं इट वॉज लाइक अ पेंटेड शिप इन अ पेंटेड ओशन, ठीक है।
जैसे किसी सीनरी में जहाज को बना दिया जाए और समुद्र बना दिया जाए, तो जहाँ जहाज है वहीं रहेगा, आज भी और कल भी। समुद्र भी वैसे का वैसा रहेगा, वो चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, वहाँ पे एक समुद्री पक्षी आ जाता है जिसको कहते हैं अल्बेट्रास। आई डोंट नो द हिंदी मीनिंग ऑफ अल्बेट्रास। वो अल्बेट्रास बर्ड है, वो आकर के उस शिप के मैस्ट पे बैठ जाता है। मैस्ट का मतलब उसमें जो मेन पिलर होता है उस पे आके बैठता है। ये लोग उसको खाने पीने को थोड़ा सामान देते हैं, नतीजा कि वो बार बार आने लगता है, ठीक है ना। और जब वो बार बार आने लगता है, सो विदाउट एनी रीजन द मैराइनर टेक्स हिज क्रॉसबो एंड शूट्स दैट बर्ड, किल्स दैट बर्ड। अब वो चिड़िया मर गई बिना रीजन के। होता है ना, लोग कुछ कर देते हैं, खुराफात हो गई है, गलती हो गई है। इसके बाद क्या हुआ, बर्फ पिघलने लगी, ठीक है, और जो जहाज फंसा हुआ था वो छूट गया, अच्छी हवा चलने लगी। द ब्रीज वॉज ब्लोइंग, द वेदर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई। तो लोग बड़े खुश हुए कि अरे बहुत अच्छा हुआ, तुमने तो बड़ा बढ़िया किया, उस चिड़िया को मार दिया, लग रहा वो बहुत बेकार चिड़िया थी, अपशकुन थी, मार दिया, देखो मौसम अच्छा हो गया, जहाज भी अच्छा चलने लगा, ठीक है ना। चलते चलते काफ़ी दूर पहुँचे, इसके बाद हवा बंद हो गई, द एयर स्टॉप्ड, ठीक है, एंड द सन वॉज शाइनिंग वेरी वेरी हॉट लाइक अ कॉपर इन द स्काई, जैसे तांबा ऐसे तप रहा था वो, ठीक है। और पानी जो था पीने का वो भी ख़त्म हो चुका था, कई दिनों से हवा बंद थी, पतवार चल नहीं रही थी, जहाज बढ़ेगा कैसे आगे, ठीक है, वहीं पे रुक गए। तो कॉलरिज लिखते हैं, वाटर इज हियर, वाटर इज देयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अब समुद्र का पानी पी तो नहीं लोगे, ठीक है, पीने को पानी नहीं है। दे वर डाइंग आउट ऑफ थर्स्ट, एक एक करके मरने लगे सब, और जहाज चल नहीं रहा है। तो सब लोगों ने क्या कहा, बिल्कुल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, सब कुछ ठीक है, सोसाइटी आपके साथ है, और जरा गड़बड़ हो गया वही आपके दुश्मन है। जो अभी तक तारीफ कर रहे थे कि तुमने अच्छा किया, उसको मार दिया, उन्होंने उस अल्बेट्रास को उठा के माला पहना दिया कि ये तुम्हारा पाप है, तुम झेलो, ठीक है। द मैराइनर बिकेम मैन हु हैज कमिटेड अ सिन, जिसने पाप कर दिया और उसको पापी मानने लगे। धीरे धीरे वो क्रू मेंबर मरने लगे, ठीक है। इसके बाद वो किसी तरीके से अपना प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करते करते किसी तरीके से वो बचता है। तो इस पोएम में एक मैसेज दिया कॉलरिज ने, बड़ी लंबी पोएम है, बड़ा वक्त लगेगा उसको सुनाने में। कॉलरिज एक मैसेज देते हैं, वो मैसेज है क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटिंग सिन, कन्फेसिंग द सिन एंड गेटिंग द रिडेम्पशन, ठीक है ना। ईसाई धर्म में कहते हैं ना, पाप हो जाए, हिंदू धर्म में गंगा नहा लो तो पाप धुल जाता है, ठीक है। ईसाई धर्म में कैसे धुलता है कि अगर पाप आपने किया है तो आपको फादर के सामने जाकर के कन्फेस करना पड़ेगा कि हाँ हमने ये पाप किया, एंड इफ यू हैव डन द कन्फेशन यू विल बी रिडेम्प्टेड, देयर विल बी रिडेम्पशन। तो इससे ये ही द मैन वाज कंडेम्ड कि तुमको जो मिलेगा बेटा सबको सुनाते रहना है अपने किए की कहानी, इसीलिए तो सबको पकड़ पकड़ के सुना रहा है कि बेटा हमारी कहानी सुन लो, हमारी कहानी सुन लो, ठीक है। सो दैट इज ए हाईली सिंबॉलिक एंड रिलीजियस पोएम रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। कॉलरिज के बारे में एक बात जरूर हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि कॉलरिज न्यूरोलॉजिया के पेशेंट थे, न्यूरैल्जिया। लेटर ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, बाइपोलर डिसऑर्डर। सो इन दोज डेज देयर वाज नो ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। आज भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कोई नहीं है बाइपोलर डिसऑर्डर का, बट बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को दवाई दे दी जाती है तो उसका दर्द कम हो जाता है। बट कॉलरिज वाज कंडेम्ड टू सफर फ्रॉम द पेन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। कोई दवाई थी नहीं, वैद्य के पास अपने गए, वैद्य ने कहा कि आप अफीम खाना शुरू करो, ठीक है। तो रोज उनको अफीम की एक डोज दे दी गई, एंड स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपियम ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इट एंड ही बिकेम एन एडिक्ट ऑफ दैट। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर में उनको क्या नाम दिया गया, ओपियम ईटर, अफीम खाने वाला, समझ रहे हैं ना। और एक बार उन्होंने अफीम की थोड़ी ज़्यादा डोज ले ली, ठीक है ना, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ओपियम
he fell asleep under a tree. एक पेड़ के नीचे सो गए. And while he was sleeping under the intoxicating influence of opium, he dreamt. He saw a dream. And in that dream, he saw the story of Kubla Khan. Unfortunately, a man came and disturbed him after some time. वो जाग गए, लेकिन तब तक उन्होंने सपने में कविता लिख डाली थी. Because poets are divinely inspired people, they can do anything. तो 54 लाइन की कल्पना उन्होंने अपने सपने में की थी. जगह तो तुरंत वो 54 लाइन वो लिखे, लेकिन इसके बाद उसको कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज ड्रीम उनका डिस्टर्ब हो गया था. एंड लेटर दिस पोएम बिकेम वन ऑफ द वेल नोन पोएम ऑफ कॉलरीज. एंड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ BA third year, this poem was prescribed in my syllabus. So this kind of poet was Samuel Taylor Coleridge. He was not only a poet, he was a philosopher. He was a great critic of his age. And he was a great talker of his age. बहुत अच्छी बात करते थे. बात करने में, ओरेटरी में तो उनका कोई साइन नहीं था अपने एज में. तो ये दो लोगों को अभी हमने कवर किया है. अभी इस एज के कुछ और जेम्स बाकी है जिनके बारे में हम बात करेंगे. इन्हीं के साथ में इनकी बहन रहती थी डोरोथी रिचर्डसन. उनका लिटरेरी आउटपुट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट देयर वॉज वन मोर फ्रेंड ऑफ कॉलरीज एंड वर्ड्सवर्थ. उनका नाम था रॉबर्ट साउदे. उनको हम कहते हैं रॉबर्ट सदे. ही इज़ आल्सो वन ऑफ द लेक पोएट्स. ठीक है ना. उन्होंने भी अच्छी कविताएं लिखी. But there are two other names which we remember in the senior romantics. और वो दो नाम हैं विलियम ब्लेक के और सर वाल्टर स्कॉट के. विलियम ब्लेक ने जो कविताएं लिखी उसमें एक कविता थी द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन. ठीक है, नरक और स्वर्ग की शादी. ठीक है, ये कविता थी, बड़ी पॉपुलर हुई उनकी. इसके बाद उनके कलेक्शंस ऑफ पोएम्स आए. वन वॉज द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द अदर वॉज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वॉज रिटन इन द अर्लियर फेज ऑफ हिज लाइफ. जब वो टेंडर एज में थे, जो कविताएं लिखी उनको टाइटल दिया सॉन्ग ऑफ इनोसेंस. जब थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गए तो जो कविताएं लिखी उनका नाम रखा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. उसी भी से एक कविता NEP के सिलेबस में नहीं, NEP के पहले के सिलेबस में पढ़ाई जाती थी, टाइगर. क्योंकि इस एज के जितने भी पोएट हैं सब नेचर के बारे में, एनिमल्स के बारे में ही लिखते हैं. इसके बाद अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे वाल्टर स्कॉट की तरफ से, क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा सबको डिस्कस करने में. थोड़ी जल्दी हम कर देते हैं. वाल्टर स्कॉट वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड. नाम में ही उनके स्कॉट है. एंड ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरिकल नावेलिस्ट. पोइट्री भी उन्होंने लिखी, लेकिन नावल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे और सारे नावल्स हिस्टोरिकल नावल्स थे. एंड उनका केनिलवर्थ, इवैनहो आपको अगली क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा. एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ दिस एज. वो बहुत बड़े इतिहासकार थे इस काल के, और उन्होंने जितने भी नावल लिखे सब इतिहास पर आधारित थे. अब हम मूव करेंगे यंगर रोमांटिक्स की तरफ, क्योंकि उनको भी कवर करना है. द टू ग्रेट पोएट्स आफ्टर वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरीज, जो इनसे जूनियर थे. वन वॉज बॉर्न इन 1792, P.B. शेली, नाम सुना होगा. एंड द अदर वॉज बॉर्न इन 1795, जॉन कीट्स. सब लोगों ने नाम सुना होगा. अप टू क्लास 12 एक आध पोएम आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी इन लोगों की. सो P.B. शेले की बात करते हैं. वन ऑफ माई फेवरेट इन इंग्लिश लिटरेचर. मेरे बड़े फेवरेट में से मैं उनको मानता हूँ. ठीक है ना. P.B. शेले वॉज बॉर्न इन 1792. कुछ बातें ऐसी हैं जो फेवरेट उनको मानना नहीं चाहिए. हम उनको फेवरेट इसीलिए मानते हैं उनकी कविताओं के आधार पे, उनके पर्सनल लाइफ के आधार पे नहीं. थोड़ा उनके पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस कर देते हैं, हालांकि बायोग्राफी बताने का कोई मकसद नहीं है. ठीक है ना. सो शेली वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, एंड आफ्टर हिज एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, व्हेन ही टुक एडमिशन इन ऑक्सफर्ड, सो ही वॉज अ बिट रिवोल्यूशनरी बाई नेचर. थोड़ा क्रांतिकारी किस्म के थे.
वो कस्टम ट्रेडिशन इनको एकदम धता बता के रखते थे, रेस्पेक्ट इनकी नहीं करते थे। वहाँ पे गए तो एक आर्टिकल लिख दिया ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए, व्हेन ही वाज डूइंग हिज पीजी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑन द नेसेसिटी ऑफ वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, अब एक क्रिश्चियन कंट्री में और वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करने के लिए लेख लिख रहे हो तो आपको थोड़ा अलग निगाह से देखा जाएगा। और जाने क्यों इनको वेजिटेरियनिज्म में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ये नॉन वेज को कम पसंद करते थे। अच्छी बात थी, कोई बुरी बात तो थी नहीं, तो उस पर इनको आड़े हाथों लिया गया। इसके बाद ये यहीं नहीं रुके, अपने फ्रेंड हॉक के साथ मिल करके इन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख का नाम था नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। नास्तिक होना चाहिए, नास्तिकतावाद को बढ़ावा देने लगे, आस्तिकता को छोड़ करके। फिर इनको नोटिस जारी की गई, दोनों लोगों को कहा गया एक्सप्लेनेशन दीजिए। इन्होंने कहा ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि ऑक्सफोर्ड से दोनों लोग एक्सपेल कर दिए गए विदाउट एनी डिग्री, बिना डिग्री लिए ऑक्सफोर्ड से बाहर हो गए। लेकिन समझौता नहीं किया पीबी सेली ने। पीबी सेली ने जो लिखा बोला बिल्कुल सही है, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज एंड नाइदर आई एम गोइंग टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन व्हाट आई हैव रिटन। तो ये थोड़ा ये रिवोल्यूशनरी मिजाज के थे, और इसलिए जब ये यूनिवर्सिटी से निकाले गए तो फिर इधर उधर आने भटकने लगे। ठीक है, कुछ दिन फ्रांस में रहे और बाद में ये कहाँ हो गए, इटली में सेटल हो गए। इसके पहले इनकी शादी एक लड़की के साथ हुई जिसका नाम था हैरियट वेस्टब्रूक। अब उसकी बेचारी की कोई गलती नहीं थी, कुछ फ्रस्ट्रेशन था, कुछ एंगर था, क्या था, दोनों के रिश्ते खराब हो गए और अलग अलग रहने लगे। इसके बाद एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में, जिनका नाम है विलियम गॉडविन। सर जानते होंगे नाम। विलियम गॉडविन के संपर्क में आए। विलियम गॉडविन की बेटी का नाम था मैरी गॉडविन। थोड़े ही दिनों में मैरी गॉडविन से अच्छी मित्रता हो गई एंड ही इलोप्ड विद मैरी गॉडविन टू इटली, और इटली में जाके रहने लगे। और वहीं पे बायरन और सदे ये सब इनके मित्र लोग भी थे। बाद में हैरियट वेस्टब्रूक ने सुसाइड कर लिया, तो लोगों ने सेली की बहुत आलोचना की। लेकिन बाद में डिटेल में जब पढ़ा गया तो पता चला कि हैरियट वेस्टब्रूक ने भी अपना दूसरा लाइफ पार्टनर खोज लिया था सेली को छोड़ करके। तो ये तो सब चलता रहता है वेस्टर्न कल्चर में, हम लोग जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वेस्टर्न कल्चर। सो सेली की कविताओं पे अब हम आएंगे, जो कि सबसे मेन बात है। वाई ही इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इफ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट पोइट। सेली की एक कविता है ओड टू द वेस्ट विंड। इत्तेफाक से मैं उसको ले करके आया हूँ, ठीक है ना। एंड यू नो दैट इट वॉज प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ BA व्हेन NEP वॉज नॉट देयर, ठीक है। और NEP में क्या हुआ, all the best poems they are deleted from the syllabus and some other poems have been inserted in place of that. So now we don't have this poem in syllabus. But मैंने जितनी poems पढ़ी इंग्लिश लिटरेचर में, still I consider that this is the best poem, Ode to the West Wind. Ode हम जानते हैं क्या होता है। Ode एक प्रशंसा गीत होता है, हमको बता दीजिएगा, हम जल्दी बाइंड अप कर देंगे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो। प्रशंसा गीत होता है। पूरी रोमांटिक एज में ओड्स सबसे ज़्यादा लिखे गए। तो सेली ने ओड टू द वेस्ट विंड में वेस्ट विंड की प्रशंसा की है, ठीक है। वेस्ट विंड पछुआ हवा, बहुत हवाएं होती, पूर्वाई, पछुआ, सब हम जानते हैं। पछुआ हवा का कुछ प्रभाव ऐसा होता है जो किसी हवा में नहीं होता है। तो उसी हवा की प्रशंसा में उन्होंने एक कविता लिखी और शुरुआत ऐसे कुछ करते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग। कहते हैं, अरे पछुआ हवा, तुम पतझड़ की आत्मा हो, ठीक है। पतझड़ एक मौसम होता है जिसको हम कहते हैं सीजन ऑफ फॉल, ऑटम। ऑटम के समय जब पछुआ हवा चलती है ना, तो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उनको ये पछुआ हवा उड़ा करके ले जाती है। तो पहली ही लाइन में कहते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग, thou from whose unseen presence the leaves dead flee away like a ghost
फ्लीड बाई इंचेंटर। कहते हैं तुमको देख करके पत्तियां ऐसे भागती हैं जैसे किसी तांत्रिक को देख करके भूत भागता है। ऐसे इन्होंने शुरुआत की। ये तो बिगिनिंग लाइन है। कुछ अच्छी लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा। दिस इज वन ऑफ दी यस। इस पूरी कविता को 5 भागों में लिखा गया। ओड की जो परंपरा थी उसमें कहा गया कि ओड को 3 भागों में लिखा जाना चाहिए, इपोड, स्ट्रोफ, एंटीस्पोड। तो इन्होंने उसको 5 भागों में लिखा। पहले भाग में एक इंट्रोडक्शन दिया पछुआ हवा का, इसके बाद बताया कि पछुआ हवा का जो प्रभाव जमीन पर क्या है उस पर लिखा 2 स्टेंजा। इसके बाद बताया पछुआ हवा का प्रभाव आसमान पर क्या है, उसको उस पर लिखा। फिर बताया पछुआ हवा का प्रभाव पाताल में क्या है, बिकॉज दिस इज द विंड विच हैज इट्स इफेक्ट इन द डेप्थ ऑफ द सी आल्सो। पछुआ हवा को इन्होंने दर्शाया कि समुद्र की गहराई में जो वनस्पतियां हैं वो भी अपना रूप बदल देती हैं जब पछुआ हवा चलती है। वो पछुआ हवा से डरती है। दे विदर इन द प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट विंड। तो ये मत सोचिए कि इस हवा का प्रभाव सिर्फ धरातल पर है, आसमान में भी है और पाताल में भी है। तो एक एक पार्ट इन तीनों एरियाज को इन्होंने डिवोट किया। इसके बाद आखिरी में ये पर्सनल हो गए और कहते हैं ना ये अपना दुख बयां करने लगे। बड़ा दुख था इनके अंदर। इनफैक्ट ये जितने भी पोइटिसेज के हुए हैं दे वर अनसेटिस्फाइड इन अ वे, बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे। और अच्छी पोइट्री तभी निकलती है जब अंदर कोई वेदना होती है। ठीक है, हाँ, यस यस यस। अभी बताएंगे उसकी उस पर। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। तो उस चिड़िया से कहते हैं टीच अस स्पिरिट, ये आत्मा तुम मुझको सिखा दो, व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, तुम्हारे अंदर इतने मधुर विचार कहाँ से आए हैं। ठीक है, इसके बाद कहाँ गए? ओके, आई थिंक आई हैव मिस्ड इट। ओके, डोंट वरी। तो वहाँ पे ये पछुआ हवा को जब डिस्क्राइब करते हैं तो जब ये बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, ओ विंड लिफ्ट मी एज ए लीफ, एज ए क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। पछुआ हवा से कहते हैं ए हवा तुम मुझको उठा लो। ठीक है, जैसे तुम एक पत्ती को उठाती हो, जैसे तुम एक बादल को उड़ा के लेके जाती हो, ऐसे मुझको उठा लो। और मैं जिंदगी के दुखों से बिल्कुल दब गया। और लास्ट में उस पछुआ हवा से कहते हैं कि मेरे शब्दों को इस दुनिया में फैला दो जिससे कि एक क्रांति आ जाए। जैसे तुम धूल को उड़ा के ले जाती हो, पत्तों को उड़ा के ले जाती हो, और मेरे शब्दों को भी उड़ाकर पूरी दुनिया में फैला दो। और लास्ट लाइन में कहते हैं इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि यदि जाड़ा है तो फिर जाड़ा ही तो नहीं रहेगा, स्प्रिंग भी आएगा। सो फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, ठीक है, सारो, द क्लोजिंग लाइन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन विच ही इज़ वेरी होपफुल कि इनका एक अच्छा समय आएगा। जो पोएम मेरे पास है वो ऑट टू द वेस्ट विंड नहीं है, सर जो अभी लाइन बता रहे थे, दैट इज पोएम ऑफ वन अदर पोएम ऑफ P.B. Shelley, दैट इज ऑट टू द स्काई लार्क। ठीक है, स्काई लार्क में वो लाइन है। स्काई लार्क भी एक चिड़िया है। इस एज में जो पोएम्स लिखी गई ना, 6 ऑट्स वर रिटन बाई कीट्स। कीट्स ने 6 ऑट लिखे। ऑट टू द नाइटिंगेल, ऑट टू द मेलंकली, ऑट टू द साइकी, ठीक है, सब ऑट टू द इंडोलेंस, इन सब विषयों पे उन्होंने अपने ऑट्स लिखे। इन्होंने ऑट लिखा ऑट टू द वेस्ट विंड, ऑट टू स्काई लार्क। स्काई लार्क एक पक्षी है, बहुत ऊंचा आसमान में उड़ता है। ठीक है, अबाबील कहते हैं। हाँ, हम भूल गए थे, अबाबील कहते हैं उसे। तो उस चिड़िया से कहते हैं टीच अस स्पिरिट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव आर माइन।
उससे पूछते हैं कि चिड़िया तुम बता दो कि तुम्हारे अंदर ये विचार कहाँ से आते हैं, और तुम्हारी जो आवाज़ है, ऐसी आवाज़ मैंने कभी सुनी नहीं है। ठीक है। फिर कहते हैं व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर फाउंटेन्स ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, ये इतना सुखद आवाज़ तुम कैसे क्रिएट करती हो, कहाँ से कोई झरना है जहाँ से आवाज़ बहती है। व्हाट फील्ड्स आर वेव्स आर माउंटेन्स, कहाँ से इसको लेकर तुम आते हो, किस मैदान से, किन तरंगों से और किन पहाड़ियों से। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई आर प्लेन, कहाँ से ये सब लेकर के आते हो। इसके बाद बड़ी फिलोसॉफिकल लाइन्स हैं, देखिए क्लोजिंग लाइन्स कितनी अमर हो गई। लिखते हैं वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। मनुष्य का नेचर क्या है कि हम आगे देखते हैं और पीछे देखते हैं और उसके लिए तरफते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लिखते हैं वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, अवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विथ सम पेन इज फ्रॉट। जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं किसी दर्द को छिपाए हुए, पेन हमारे लाफ्टर में भी कहीं ना कहीं समाया हुआ है। हम कंप्लीटली कभी हैप्पी नहीं हो पाते हैं, कभी कंटेंटेड नहीं हो पाते हैं। और फिर लिखते हैं आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट। हमारे सबसे मधुर गीत कौन हैं? जो हम दुख में गाते हैं, ठीक है, जिनमें हमारा दर्द होता है। इसके बाद अंत में उससे कहते हैं इसका इलार्क से कि थोड़ा हमें भी अपनी खुशी दे दो, थोड़ा हमें भी अपने प्रसन्न रहने का गुरुमंत्र दे दो। इतनी मस्ती से तुम कैसे उड़ते हो आसमान में, मैं तो ऐसे कभी खुश नहीं रह पाता जितना तुम खुश हो। उससे पूछते हैं टीच मी हाफ दाई ग्लैडनेस, आधी खुशी ही दे दो, पूरी नहीं दे रहे हो, आधी ही सिखा दो। टीच मी हाफ दाई ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम जानते हो। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, अगर तुम आधा भी सिखा दो अपनी खुशी का मंत्र, तो ऐसी हारमोनियस मैडनेस मेरे होठों से निकलेगी, ऐसी कविता मैं लिखूंगा कि क्रांति हो जाएगी। द वर्ल्ड शुड लिसन देन टू मी, जैसे मैं तुमको सुन रहा हूं ना, तो पूरी दुनिया मुझको सुने। ये स्काई लार्क से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आधी खुशी हमको सिखा दो। बट एक चीज़ और जान लीजिए, टीबी शैली रोमांटिक एज के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी रही, ठीक है। कुछ पोएट को छोड़ दिया जाए, वर्ड्सवर्थ, ही वॉज बॉर्न इन 1770 and he lived quite a long life of 80 years and died in 1850। 1850 तक हो रहे, 80 साल की एक अच्छी लाइफ उनकी रही। लेकिन शैली की जब बात करें तो 1792 में बर्थ होती है और 1822 में एक दिन इटली जा रहे थे नाव से, क्योंकि वो पूरा यूरोप को आप देखोगे तो सब एक तरीके से श्रीलंका जैसे आइलैंड नेशंस हैं, इस तरीके से हैं। इटली इज़ अ नेबरिंग नेशन ऑफ इंग्लैंड। इटली जा रहे थे अपनी बोट में, इनकी बोट बे ऑफ स्पेजिया में डूब जाती है और कई दिन के बाद इनकी डेड बॉडी मिलती है। एट द एज ऑफ 30 ही वॉज डेड, बट बिफोर हिज डेथ ही वॉज मैरिड टू मैरी गॉडविन, द डॉटर ऑफ द ग्रेट फिलोसफर विलियम गॉडविन। इनके परम मित्र किड्स थे जो इनसे थोड़ा छोटे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी तो इनसे भी छोटी थी, ठीक है ना। ही वॉज बॉर्न इन 1795 में कीट्स का जन्म होता है। एंड कीट्स वॉज फ्रॉम अ हम्बल ओरिजिन। बाकी रोमांटिक एज के पोइट्स की तरीके से अमीर घरानों से वो नहीं पैदा हुए थे, एक सिंपल से घर से आए थे। एंड दैट इज़ वाई ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस। उन्होंने रोजगार बनाने के लिए मेडिकल साइंस में पढ़ाई शुरू की। एंड ही बिकेम अ सर्जन एट द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र में वो सर्जन बन गए, ठीक है ना। बट हिज इंटरेस्ट वॉज नॉट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ही वॉज मेड फॉर समथिंग एल्स। सो ही लिफ्ट हिज tablets, lotion and potion, and took his pen and started writing poetry. And he has written a well-known poem, एंडीमियान। एंडीमियान एक कविता है, ग्रीक मिथ पे आधारित है, जिसमें एंडीमियान की जो प्रेम कथा है
चंद्रमा की देवी के साथ जो उनकी प्रेम गाथा है उसको गाया गया है। द मून गॉडेस फेल इन लव विद एंडीमियन, उस पर एक बहुत लंबी पोएम कीट्स ने लिखी। और जब कीट्स की वो पोएम पब्लिश होने को गई तो उस पर निगाह पड़ गई दो लोगों की। वन वॉज विलियम लोकहार्ट, अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ ब्लैकवुड मैगजीन। लंदन में एक मैगजीन पब्लिश होती थी लिटरेचर की जिसका नाम था ब्लैकवुड मैगजीन, उसके चीफ एडिटर थे विलियम लोकहार्ट। विलियम लोकहार्ट ने उसकी इतनी आलोचना कर दी कि कीट्स बेचारे सौद हो गए। वो सोचे अरे हमने तो गलत दिशा में हाथ डाल दिया है। बहुत बुरी आलोचना झेलनी पड़ी उनको। और दूसरी तरफ एक फैमिली ट्रेजेडी चल रही थी। हिज फादर वॉज डेड बाई ट्यूबरकुलोसिस, हिज मदर वॉज डेड ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, and his elder brother Charles was also dead due to tuberculosis when he was just 19 years old. And the whole family was swept away in that horrible disease of tuberculosis. बड़ी खतरनाक बीमारी थी। दो ही तो बीमारियां खतरनाक थी, लोगों की रूह कांपती थी। एक थी प्लेग और दूसरी थी तपेदिक। ठीक है, एंड देयर वाज नो मेडिसिन ऑफ इट। आजकल इट हैज बिकम वेरी कॉमन। कोई मरता तो नहीं है जल्दी ट्यूबरकुलोसिस से, एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं ड्यू टू मेडिकल साइंस, ड्यू टू मेडिसिन। कीट्स को भी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। When he was at 19, he started writing poetry, and by the age of 24, he has written whatever he was destined to write, and in his 25th year, he died due to tuberculosis. And there were tragedies and tragedies in his life. He was having a beloved. Her name was Fanny Brawley. सारे रोमांटिक पोएट बड़े हैंडसम थे, टाल थे, ठीक है। एक थोड़ा लंगड़े थे, पैदा ही लंगड़े हुए थे, ठीक है। कीट्स जो है थोड़ा नाटे करके थे, ठीक है ना। और फैनी ब्रॉने ज़्यादा स्मार्ट थी, ठीक है। सो इन द बिगिनिंग देयर वाज लव बिटवीन द टू, बट व्हेन कीट्स प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज, शी डिडंट एग्री. She was having certain doubt regarding his personality or maybe the family history of the tuberculosis. Anyway, his love affair was not successful. तीन तरफ से ये मारे गए. One from his love life, second from the critics of that notorious magazine, and the third, tuberculosis. तो लोग कहते हैं कि जब तीन तरफ से दुर्भाग्य कीट्स झेल नहीं पाए, and at the age of 24 he started vomiting blood, and in those days there was no treatment of this tuberculosis. खुद ही डॉक्टर थे, तो कहाँ जाते थे लोग? जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता था वो इटली चले जाते थे, और ये कहा जाता था कि इटली की आबो हवा अगर आपको ठीक कर दी तब तो आप बच गए, अदरवाइज मरना ही है. And at the age of 25 he left this world. But Keats has written so great poems that he has surpassed most of his contemporaries except Shelley and Wordsworth in poetic output, not only in quality as well as in quantity. 300-400 लाइन की कविताएं एक बार में बैठ करके वो लिखते हैं. उसके लिए कई बार उनको नहीं बैठना पड़ता था. शुरू में तो बहुत शॉक्ड हो गए थे कि मैं नहीं अच्छा पोएट हो पाऊंगा, लेकिन इसके बाद इन्होंने लिखा हाइपेरियन, एंडीमियन के बाद लिखा हाइपेरियन. और कीट्स के बारे में कहा जाता है कि कीट्स अकेले ऐसे रोमांटिक पोएट हैं जिन पे ग्रीक लिटरेचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा. इसीलिए आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है हेलेनिज्म इन कीट्स. What is Hellenism? The influence of Greek mythology and Greek literature in the poetry of Keats. So Keats is a bit difficult poet of this age, but the sensuousness, the imagery which we get in the poetry of Keats is unparalleled. And he was a worshipper of beauty. वो सुंदरता के पुजारी थे. उन्होंने लिखा था A thing of beauty is a joy forever. ठीक है. एंडीमियन शुरुआत ही उसी लाइन से होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. और ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्थ में लिखे हैं लाइन, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी.
वो सत्यम शिवम सुंदरम वाली बात है। ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट ye नो एंड ऑल ye नीड टू नो इन दिस वर्ल्ड। बस यही दो बातें आप जान लीजिए, सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है, जो आपको जानना है, बस और कुछ नहीं है। उनकी एक कविता है, उसको भी हम लेके आए हैं, ऑड टू नाइटिंगेल। उन्होंने क्या लिखा था? ऑड टू स्काईलार्क, इनके मित्र, और इन्होंने क्या लिखा? ऑड टू नाइटिंगेल। वन मोर थिंग, चलिए एक पोएम लिखे थे जिसका नाम था एडोनेस। एडोनेस एक एलेजी थी, और वो जानते हैं किसको डेडिकेटेड थी? कीट्स को, क्योंकि कीट्स की मृत्यु 26 में होती है और सेली 4 साल बाद जाते हैं। तो अपने मित्र के इस कम उम्र में वियोग से वो बहुत दुखी थे, तो उन्होंने सोचा कि इन सबको सबक सिखाएंगे जिन्होंने कीट्स की आलोचना की है। तो उन्होंने एक कविता लिखी एडोनेस, उसको पढ़ा एडोने जाता है लेकिन लिखा एडोनेस जाता है, जिसमें उस मैगजीन के जो एडिटर महोदय थे उनकी आलोचना की गई और कीट्स को ग्लोरीफाई किया गया। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय पीबी शेली। इट वाज डेडिकेटेड टू द कीट्स। कीट्स की जो ऑड टू द नाइटिंगेल है, इसमें ये तब लिखते हैं जब इनको पता चल जाता है कि इनको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है। तो ये बहुत दुखी थे और शाम के वक्त बैठे हुए थे और अंधेरा हो रहा था, और नाइटिंगेल की आवाज़ जब सुनते हैं तो ये इनका दुख जो है बाहर प्रकट होता है इस कविता के माध्यम से। और एक सिटिंग में सर ये पोएम लिखी गई, इन वन सिटिंग, जस्ट इन वन सिटिंग दिस पोएम वाज रिटन। इट इज़ रिटन इन मेनी बुक्स ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रुथ। इसमें कहते हैं, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नार चैरिटेड बाई बैकस एंड हिज पार्ट्स, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी। पहले तो ये कहते हैं कि हमको कोई ऐसी शराब पिला दो जो ज़मीन में 20 साल से गाड़ के रखी गई हो। शराब के बारे में कहा जाता है वाइन, कि जितने साल पुरानी हो उतना ज़्यादा नशा देती है, ठीक है। तो कीट्स कहते हैं कि 20 साल पुरानी वाइन का जो नशा है वो भी तुम्हारे इस गीत से के आगे फीका है, नाइटिंगेल के गीत के आगे। और फिर उससे कहते हैं, कुछ ही लाइन हम पढ़ेंगे, बहुत लंबी पोएम है। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ किसी दूसरी दुनिया में उड़ जाना चाहता हूँ। नॉट चैरिटेड बाई बैकस, ऐसा नहीं है कि शराब के नशे में मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ। बैकस कौन है? बैकस इज द गॉड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। जैसे ग्रीक लिटरेचर में शराब का भी देवता होता है, ठीक है। तो शराब के देवता जो बैकस हैं, कहते हैं कि बैकस के पंख लगा करके मैं नहीं उड़ना चाहता हूँ। कैसे उड़ना चाहता हूँ? बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, अपनी कविता के अदृश्य पंखों से मैं अपनी उड़ान भरना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद कहते हैं उस नाइटिंगेल से, दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। अरे अमर चिड़िया, तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुई। अमर तो कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन नाइटिंगेल की जो सुरीली आवाज़ है वो कुछ इस तरीके से कवियों ने उसका बखान किया है कि वो अमर हो गई, वो चिड़िया ही अमर हो गई। हाँ। तो दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, तुम मरने के लिए नहीं पैदा हुई हो। नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन, कोई पीढ़ियां तुम्हारा दमन नहीं कर सकती, तुमको नीचा नहीं दिखा सकती। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज बाई एम्परर एंड क्लाउन। जो आज मैं तुम्हारी आवाज़ पढ़ रहा हूँ, ये आवाज़ जो है राजा महाराजा भी सुनते थे, जो आज मैं सुन रहा हूँ। तो कुछ इस किस्म की कविताएं रोमांटिक एज में लिखी गई, ठीक है ना। एंड दैट इज़ वाई दिस एज इज टर्म्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इट डजंट मीन दैट अदर एजेस वर ड्राई इन लिटरेरी आउटपुट और इन पोएटिक आउटपुट। बाद में मॉडर्न एज में तो टी.एस. इलियट जैसे बड़े महान कवि हुए, जिन्होंने मॉडर्न एज की बड़ी आलोचना की, ठीक है, एलियनेशन की, मॉडर्निज्म की, ठीक है, रूटलेसनेस की, कि कैसे एक आधुनिक आदमी एकदम जड़लेस हो गया है, उसकी कोई जड़ ही नहीं है, कोई रूट ही नहीं है। उन्होंने कविता लिखी वेस्ट लैंड, 4 क्वार्टेट, जो एकदम निराशावादी आधुनिक कविताएं हैं, लेकिन बड़ी महान कविताएं हैं। बट जहाँ तक कविता के रस की, सौंदर्य की, लालित्य की, ठीक है, उसकी सुंदरता की बात है, तो रोमांटिक एज की पोइट्री का कोई कंपैरिजन
अंग्रेजी साहित्य में नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत